all on the first day of a new year. Happy New Year once again to all of you. And I'm really surprised that on the first day also we are so serious about NEP sensitization. A good number have joined, ma'am. How many are there altogether? I can see Madam, 31 in the. 10 more will join, but we can Okay, start the session. okay, ma'am. Okay, ma'am. And I believe today's session is the first session, isn't Yes, it? madam, first session. So I will just give you a brief introduction as to why we are having this program first before I start talking about holistic and multidisciplinary education. So friends, ऐसा है कि इससे पहले भी हमारे यहाँ पॉलिसीज बनी, एजुकेशन पॉलिसीज बनी. ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी एंड देयर इज सो मच ऑफ enthusiasm or so much of work going on behind it. इससे पहले भी हुआ था, 1968 में हुआ था, 1986 में हुआ था. हर एजुकेशन पॉलिसी का एजेंडा अलग था. 1968 में एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाने के लिए सोचा गया था कि हाउ टू मेक education universal, how it can reach to maximum people. In 1986, more emphasis was put on technical education. New technical institutes were set up, and women universities were started. So the concept of inclusivity began in 1986 only. But what we have in 19 in 2020 as NEP is little different from what we had earlier. NEP को अभी एक संपूर्ण मॉडल के रूप में देखा जा रहा है. ऐसा सोचा जा रहा है कि NEP के द्वारा संपूर्ण विकास होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा. किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा. होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उसका संपूर्ण विकास होगा, लेकिन वो विकास है क्या, इस पर काफी चर्चाएं हुई हैं कि क्या है ये विकास, क्या देने से संपूर्ण विकास होगा. तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हम स्किल एजुकेशन देना शुरू करें. वंस वी गिव स्किल एजुकेशन, मे बी दे विल बी एबल टू earn their livelihood. But there is another school of thought which says that skill in education is not enough. अगर स्किल हम उनको प्रेमिसेस के अंदर दे, कॉलेज के अंदर हम उनको स्किल दे, तो वो स्किल वो कहाँ तक बाहर जाके उसको सार्थक करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. तो इसीलिए स्किल के साथ साथ उसका प्रैक्टिकेबिलिटी भी जानना जरूरी है, और उसके लिए एक्सपीरियंशियल एजुकेशन देना जरूरी है. दैट मीन्स यू आर गिविंग वन स्किल टू द स्टूडेंट्स एंड यू आर मेकिंग देम एग्जीक्यूट दैट स्किल. आप कुछ सिखा रहे हैं और आप उसका एग्जीक्यूशन भी देख रहे हैं. एग्जीक्यूशन देखने के लिए उनको एक्सपीरियंस देना जरूरी है. तो हम एक्सपीरियंस कैसे देंगे? हम स्टूडेंट्स को कैंपस से बाहर ले जाएंगे, कम्युनिटी में ले जाएंगे, सोसाइटी में ले जाएंगे, और वहाँ जो वो सीखे उसका एप्लीकेशन दिखाएंगे. मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की कमी है, लेकिन वहाँ बारिश होती है. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ गुड मेथड. That skill of harvesting rainwater can be given to the student. Technical skill can be given. But the student can go around and find out the areas, identify the areas where this is needed and try to implement it. तो ये मेन आइडिया था. लेकिन इसके साथ साथ ये देखा गया कि nowadays students suffer from a lot of mental tension. They are not happy with what they get. They are always aiming for something else. They are not able to achieve whatever they're aiming. There's a big margin between the expectation and the outcome. So the expectation sometimes is much more and the outcome is not that much. So what happens is that students tend to develop negativity, they become depressed, they lose hope, they are impatient, they are always in a rat race competing against one another. और इस सब में the mind is affected most.
So mentally, if you want to give support to the student, what is your job as a teacher? Your job is to become a mentor to the student. When you become a mentor to the student, then you are able to understand the problems of the student. And when you are able to give them the mental support that they need, then the student becomes a much more uh, complete individual or a stronger person mentally, physically, intellectually, academically, everything. So that is the idea behind this whole thing, NEP, holistic education. तो होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब है शरीर, मन, आत्मा, सबका विकास. ऐसा नहीं, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, द बॉडी, द सोल, the physical aspect, the academic aspect, the cognitive aspect, the intellectual aspect, spiritual aspect, everything of the student. How do we develop that? We develop that through multidisciplinary teaching. You can't have a college or a university where only one thing is taught. In order to develop a student fully, number of things have to be taught, and that is possible only in multidisciplinary institutes. So friends, holistic और multidisciplinary are complementary to each other. हम होलिस्टिक एजुकेशन तभी दे सकते हैं जब हमारे पास मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हो, और मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस का उद्देश्य है होलिस्टिक एजुकेशन देना. तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आज का जो भी हम लोग बातचीत करेंगे वो सार्थक हो जाएगा. तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ. मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ बी इंटरैक्टिव. आपके मन में जो भी सवाल है, कोई भी सजेशन है, कोई संशय है, कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं या हमसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़, या हमें बताना चाहते हैं, तो आप बेझिझक मुझे मुझसे बात कर सकते हैं. रादर आई वुड लाइक you all to involve me in this interaction. मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा एक वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, बिकॉज एनईपी के बारे में आज जो मैं बोलूँगी वो कुछ नया नहीं है. यू कैन इवन गो एंड सर्च इन द नेट एंड यू विल गेट एवरीथिंग. So it's more than that. Let's try to absorb the real spirit of NEP, and then, and especially holistic and multidisciplinary education. और इस बीच आप मुझे, you can stop me and ask me, or you can write in the chat box and ask me, and I will stop from time to time. और मैं आपसे ये बोलूँगी कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप बताइएगा. ओके, सो विद दैट आई एम स्टार्टिंग, एंड लेट्स बी इन एन इंटरैक्टिव मोड. मुझे पता है कि साल का पहला दिन है, 4 बजे का सेशन है, सबको नींद आ सकती है. कल देर रात तक आप लोगों ने बहुत मज़ा किया होगा, लेकिन फिलहाल आज का ये जो क्लास है, प्लीज़ लेट अस मेक इट अ लिटिल मोर इंटरैक्टिव, तो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा. सो विद दिस आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, एंड क्या आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. It is visible. इट्स विजिबल, नो? ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ विद द एसेंस ऑफ एनईपी 2020. यहाँ पर दो शब्द जो है आपको ध्यान से देखना है कि टॉक्स अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, अर्थात एजुकेशन ऐसा हो जो कि स्टूडेंट को कॉम्पिटेंट बनाए, एंड आउटकम बेस्ड लर्निंग, जो भी हम लोग पढ़ाएंगे सिखाएंगे, that should have a definite outcome. So that is the main essence of NEP 2020. इससे पहले we were not worried about making our students competent. We were more worried about
awarding degrees so that education is complete. But now, before awarding degrees, we are trying to ensure that we are making them competent. हर स्टूडेंट को हम competent बना सकते हैं और यही हमारा आउटकम है. नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के 5 एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स ऐसे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, डिग्री लेवल हो, प्री यूनिवर्सिटी लेवल हो, कोई भी लेवल हो, हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं. You have to have the knowledge of the subject and a thorough understanding of the subject. Secondly, whatever knowledge you have to make it applicable. So, applying the knowledge and understanding is important. After that, making judgments. Now, to make judgments about what you are studying, you need to develop the art of critical thinking. Ask the art of asking questions, problem solving techniques. Then only you can make judgments. तो NEP ये कहता है कि हम इस तरह से अपने आप को संवारे ताकि we are able to make judgments. Communication skills. Now in India, unfortunately, because we speak in so many languages, communication हमारा बहुत weak है. हम ना तो सही लिख सकते हैं ना सही बोल सकते हैं और ओवर द इयर्स इसका डिटोरेशन हो गया है. अभी हमें नॉट ओनली वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन बट ऑल्सो डिजिटल कम्युनिकेशन पर भी जोर देना है. एंड फाइनली लर्निंग स्किल्स. इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न स्किल्स. स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है और शायद इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर स्किल्स पर कभी भी एम्फसाइज नहीं किया गया. When you compare our skill standards with any developed country, whether it is Germany or South Korea, you will find that India lags behind. Skills are taught as part of regular program, educational program in schools and colleges of any developed country, any first world country. Unfortunately, India, which has such a large population, इतना बड़ा देश है, इतने सारे यूथ है, युवा है, लेकिन उनको स्किल सिखाया नहीं जाता. अभी नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ये कहता है कि स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है. सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एजुकेशन 1.0 से एजुकेशन 4.0 तक ले जाऊंगी. क्या है ये एजुकेशन 1.0 और क्या है एजुकेशन 4.0? आपकी स्क्रीन में दिख रहा है. एजुकेशन 1.0 ये उस समय की बात है, 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी में, जब मॉडर्न एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया thanks to the British. The British started the art of modern education in India. And at that time, the role of the teacher was like a sage on stage. टीचर को सब कुछ आता था. स्टूडेंट्स को कोई हक ही नहीं बनता था कि वो टीचर को क्रॉस करे, क्वेश्चन करे. वो होता ही नहीं था. दैट वाज एजुकेशन 1.2. क्योंकि उस समय मोस्ट ऑफ द नॉलेज वाज टेक्स्ट बुक ड्रिवन. Textbook formed the हाँ बोलिए basis सर. of all knowledge. Other sources of knowledge बहुत limited थे. कल 11 बजे है सर. बाहरी knowledge लोगों के पास नहीं था because कल की मीटिंग तो 1 घंटा ही रहेगी. सेशंस आपको at परसों that से time होंगे. we did not have access to other जी. sources of knowledge. जो था वो प्रिंट में था और जगह हाँ, हाँ, के हाँ. मेल भी बुक्स आया है क्या? और दूसरे लाइब्रेरीज से पढ़ना, हाँ, ये कल. सब था. That was education 1.0. आज थी ना सर. Then आज in हमारी 20th और एक century मीटिंग थी, came इसलिए मैंने वो education कल 2.0. शिफ्ट की है. इस समय the role of the teacher changed. The teacher was not a sage on stage. हाँ, यहाँ हाँ. पर teacher बन गया हम्म. philosopher and guide. And as the name suggests, that if you are a philosopher and guide, what do? You are taking care of the academic development of the student. तो यहाँ पर teachers were involved in guiding the students, supervising the work of the student. Student
never questioned the teacher, and the outcome was good because there was a lot of research work coming up. When a teacher acts as a guide, as a supervisor, the outcome is obviously you will have some outcome. Then came Education 3.2. Now the role of teachers changed. Now the role changed from a philosopher and guide to a collaborator. टीचर्स को भी एक्सेस था फंड्स का. So that was in the 20th, late 20th century. There were several funding agencies. Teachers applied for funds, they got funds, and they involved students in their projects. So that was Education 3.0. Here, the use of technology increased. There was technology within the classroom, but it was not so widespread. But with Education 4.0, जो कि अभी है 21st century में Education 4.0, now there is no dearth of information. फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि आप क्लास में जाके कुछ ऐसा बताएंगे जो आपके स्टूडेंट को पता नहीं है, तो आप गलत फहमी में रह रहे हैं. स्टूडेंट्स know even before their teachers because they do not check the authenticity of any information. They depend on sources of information and they have access to those sources. So it's not that you come to a class for a lecture and you are like no one questions you or people are just sitting and listening to you. ऐसा अभी नहीं होता है. अभी स्टूडेंट्स के पास सब कुछ है. अगर आप उनको कोई लेक्चर 1 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर, तो वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले से ही उसको गूगल सर्च करके या विकिपीडिया से वो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन निकाल चुके होंगे. एंड नाउ प्रेजेंटली with AI and robotics and machine learning, all these things coming up, so it's very difficult to compete with technology. And the student is more well informed, has more access to technology, has more understanding of technology. तो एजुकेशन 4.0 में टीचर का रोल बन जाता है मेंटर का, क्योंकि टीचर नया कुछ तो बता नहीं सकता है. टीचर कैन ओनली गिव द नॉलेज that he or she has, the theoretical knowledge, the basic concepts, clear the concepts, that the teacher can do. But apart from that, the teacher's role is now to nurturing the academic and mental condition of the student. So that is where the approach to education has changed. Education 4.0 में हम ये देख रहे हैं कि the role of teacher is now the role of a mentor. तो अभी जब हम NEP की बात करते हैं और हम होलिस्टिक की एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमारे लिए अचरज की बात नहीं है, बिकॉज होलिस्टिक एजुकेशन में जो जो चीज़ बताया गया है वो सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशन 4.0 में है. Now I come to the concept of holistic education. So friends, when I start holistic education, I'll show you pictures and you just tell me कि ये pictures कहाँ का है. जैसे कि हम अपनी हिस्ट्री बुक्स में देखते हैं, ये है 2 जगह की तस्वीरें. So can you tell me, these are ancient educational centers. ये कहाँ का है? नालंदा यूनिवर्सिटी. Yeah. एक नालंदा यूनिवर्सिटी में, दूसरा नहीं पता. And one is Nalanda and the second, yes, Takshashila. Yeah. So we got, the first one is तक्षशिला. yeah, ये वाला तक्षशिला है, ये वाला नालंदा है. इसको मैं क्यों दिखा रही हूँ आप लोगों को? Why am I showing you the pictures of Nalanda and Takshashila? They are the ancient educational centers, you all know. But these were also centers of holistic education. यहाँ पर सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, from chemistry to carpentry, from mathematics to music, from architecture to
एस्ट्रोनॉमी सब कुछ पढ़ाया जाता था, और देश विदेश से लोग आते थे. दे यूज्ड टू come and stay over here and complete their education. So these were the centers of holistic education, and definitely these were multidisciplinary institutes. So there were others also, like Vikramshila was also another one. Now there's a book by Bana Bhatta. It's called Kadambari. In that book also there is mention of 64 kalas. 64 कलाओं के बारे में वहां पर कहा गया है. Now these kalas are not art. Kala here doesn't mean art. It means anything like science, fine arts, soft skills, liberal arts, vocational skill, anything. So उस समय when Banabhatta wrote this, he was aware that India had so many kalas. तो अगर उस समय था तो आज के डेट में तो होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. कुछ रीसेंट मॉडल्स ऑफ होलिस्टिक लर्निंग हमें देखने को मिलते हैं. Humboldt in Germany, in the 19th century, he was the one who stated that holistic education is the only complete education. तो उनका रीसेंट मॉडल जो है वो ऐसे 4 स्तंभों पे खड़ा है, बेस्ड ऑन 4 पिलर्स. पहला वाला है एक्सपीरियंशियल लर्निंग. तो होलिस्टिक एजुकेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हम्बोल्ट ऑफ जर्मनी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज एसेंशियल. एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना. दूसरा है सेल्फ गाइडेड लर्निंग. सेल्फ लर्निंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हर एक का अपना पेस होता है, अपना स्पीड होता है, अपना लेवल होता है, अपना स्टाइल होता है. सो वन शुड ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू वंस ओन स्टाइल एंड पेस. सेल्फ गाइड होना चाहिए. दूसरों के साथ रैट रेस में दौड़ना कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि अपना रास्ता खुद तय करना और आगे बढ़ते जाना. The third is addressing multiple subjects. Friends, यहाँ पर एक बात आ जाती है कि हम लोग हमेशा से we were so divided in our thinking कि जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो आर्ट सब्जेक्ट ही जानेगा, साइंस का कुछ नहीं जानेगा, या जो साइंस का स्टूडेंट है वो कॉमर्स का कुछ नहीं जानेगा. तो अभी ये कॉन्सेप्ट एकदम एप्लीकेबल नहीं है. इट इज नॉट रेलिवेंट टुडे. आप किसी भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, वर्ल्ड रैंकिंग का यूनिवर्सिटी जो होता है, वहां पर मल्टीपल सब्जेक्ट के बारे में बातें की जाती है. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन ओनली वन सब्जेक्ट. Simultaneously, they are doing a number of subjects. That is interdisciplinary coursework. And fourth is to stay connected with the society. We have to build a community connection, community school. Like I said, that rainwater harvesting, that ultimately helps the community. तो हमको वही सोचना है. आगे बढ़ते हैं कि बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, जो कि ब्रिटिश के अंडर में हुआ. वी नो that the British ruled India for 200 years. The picture that you see on the right of your screen is the picture of Thomas Babington Macaulay. So Macaulay was responsible for bringing modern education in India. So when the British were ruling India, they realized that they needed people who were educated, क्योंकि उनको अपने काम को खत्म करने के लिए, उनके काम के लिए उनको ऐसे लोगों की जरूरत थी जो कि काम कर सके. पर उनको पढ़ाने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए होगा. So the Charter Act of 1813 did that. The Charter Act of 1813 kept 1 lakh of rupees to educate the natives. Natives meaning the Indians. Now, how to educate the natives? In which language? What should be the medium? So, there were 2 different views regarding this. One was the view of Orientalists versus the view of others. The Orientalists believe
that Indians should be taught in their mother tongue. मातृभाषा में पढ़ाई करवाना जरूरी है क्योंकि दैट विल हेल्प देम टू डेवलप। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, उनका ये कहना था कि अगर हम नेटिव्स को अपनी भाषा में पढ़ने दें तो हमारा क्या फायदा होगा। Ultimately, they wanted in English speaking, English knowing workers. So for that, they justified the use of English as the medium of instruction. Yes, friends, Thomas Babington Macaulay did just that. उनका व्यू था कि इंडियन लिटरेचर बहुत ही कमजोर है, बहुत ही छोटा है, और उन्होंने ऐसा कोट किया, यहाँ पर यू कैन सी विद इन इन्वर्टेड कॉमा, sorry. So you can see within inverted comma that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. उनका ये कहना था कि हम इंग्लिश उनको सिखाएंगे नेटिव्स को बिकॉज उनका अपना लिटरेचर जो है दैट सो स्मॉल, सो लिमिटेड दैट इट कैन फिट वन शेल्फ ऑफ एन यूरोपियन लाइब्रेरी। उनको ये नहीं पता था कि हमारा वेद, हमारा उपनिषद, हमारा दूसरे जो टेक्स्ट है वो इतने वॉल्यूमनेस है। He had no idea, so he said this. Okay, so now if we sum up what holistic education is, we will say that it talks about life experiences and not basically not basic skills, which means that when we talk about holistic education, we also mean experiential education. We are not talking about just giving them skills. So the question now is it the right form of education? क्या ये सही है? तो इसका आंसर है yes, it is the right form because it educates the whole student. संपूर्ण स्टूडेंट का विकास करता है, उसको एजुकेट करता है. It educates the student as a whole, considers the student to be a part of the community. तो उसको पढ़ाने का मतलब है कम्युनिटी के प्रति एक सर्विस करना, and see the student as part of the whole. स्टूडेंट को एक बड़ा विश्व का एक छोटा हिस्सा मानकर ही उसका एजुकेशन हो रहा है. What is the origin of this concept? तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है and we have this Socrates who said, know thyself, know thyself. Know thyself meaning know thyself meaning that one should know himself. That is the complete education. And it is not synonymous with New Age movement. New Age movement में we have feminism, we have Marxism. It's not like this. It has its roots in ancient cosmologies, ancient traditions. And it is not a product of counterculture. It's not like, feminism, which is the counterculture. It's not like that. It is it's a very deep-rooted thing. So with this, we come to the complete the introduction part. Now I'll tell you about the philosophers whose teachings help us in framing NEP 2020, the concept of holistic education. क्योंकि जब हम होलिस्टिक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी नीड टू टेक द गाइडेंस फ्रॉम फिलोसोफर्स. तो हम लोगों ने जिन लोगों से गाइडेंस लिया है उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी. फर्स्ट इज स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद. उनका ये फिलोसफी था सविद्या य विमुक्ति, मीनिंग नॉलेज लिबरेट्स. Knowledge liberates one from what? From ignorance, from superstition. So from
नैरो माइंडेडनेस। जब कोई नॉलेज गैदर करता है तो वो ऑब्वियसली ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, अपने दायरे से बाहर आ सकता है। स्वामी जी ने कहा था कि the life of a student should have three pillars of idealism, naturalism and pragmatism. आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म का मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट का आइडियल सिचुएशन होगा कि उसका माइंड भी डेवलप हो और साथ ही साथ उसका स्पिरिट भी डेवलप हो, बिकॉज वी नो फ्रेंड्स दैट हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है। तो जैसे जैसे आप माइंड का विकास करा रहे हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करा रहे हो, एकेडमिक्स में स्टूडेंट को आगे बढ़ा रहे हो, साथ ही साथ उसका शारीरिक विकास भी जरूरी है, उसका आत्मिक विकास भी जरूरी है। और सेकंड इज नेचुरलिज्म। स्वामी जी का कहना था कि नेचुरल प्रोपेंसिटीज को पहचानना बहुत जरूरी है। हर चीज जो है वो नेचर के साथ इस तरह से जुड़ी हुई है कि हम लोग इसको नकार नहीं सकते हैं, और यही रियलाइजेशन होना चाहिए। और थर्ड इज pragmatism. Pragmatism means you have to be pragmatic in your belief, in your behavior. हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा पास्ट बहुत ग्लोरियस था इसलिए हम पास्ट को ही पकड़ के चलेंगे, फ्यूचर की तरफ नहीं देखेंगे। या हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम वेस्ट की तरफ नहीं देखेंगे, हम वेस्टर्न सोसाइटी से कुछ भी नहीं लेंगे। ये नहीं, ये प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं है। वन नीड्स टू बी प्रैग्मेटिक, जो सही है उसको लेना है, और कितना लेना है वो भी सोच समझ के लेना है। न्यूक्लियस ऑफ हिज आइडिया डस नॉट लाई इन रिलीजियस एंड थियोरेटिकल डॉक्ट्रिन्स। बहुत लोगों का ये कहना है कि स्वामी जी तो रिलीजियस लीडर थे तो वो रिलीजन को यहाँ लाए। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि एनईपी ने स्वामी जी के रिलीजन को नहीं लिया, उनकी फिलॉसफी के उस हिस्से को लिया है जिससे कि हम अपने स्टूडेंट्स को डेवलप कर सके। और इसी के द्वारा वी हैव नाउ started a subject which is very important, and that is environmental education, ethics. These are subjects which are new and they have been introduced in NEP 2020. एक एक सेमेस्टर में ऐसे सब्जेक्ट्स घुसाए गए हैं, और इससे क्या होता है, स्टूडेंट का जो विकास होता है, आत्मिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स का लाइफ बेटर होगा, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बेटर होगा। Next is Tagore's philosophy. We all know that Rabindranath Tagore started Shanti Niketan, Vishwa Bharati यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, जहाँ पर खुले में पढ़ाई की जाती है। यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें भी यहाँ पर एक चीज उन्होंने कहा था कि हाईएस्ट एजुकेशन डज नॉट मियरली गिव इंफॉर्मेशन। Rabindranath Tagore was strictly against only gathering information. Rather, he wanted everyone to exist in harmony. अगर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन तक ही सीमित रखें पढ़ाई को, तो वो इंफॉर्मेशन तो हमारे स्टूडेंट के पास पहले से है। मैंने कहा ना कि क्लास में जाके अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आप अपने स्टूडेंट को ऐसा कुछ बताओगे जो स्टूडेंट को नहीं पता है, देन यू आर मिस्टेकन। इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन एजुकेशन इज नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, it teaches us to live life in harmony with all existences. Then comes Malviya. Okay, friends, let me tell you that from Tagore's philosophy, what subject did we take up from Tagore? So we took up a subject like global citizenship. Global citizenship is very much there in Tagore's philosophy, when he says that how to live life in harmony with all existences. Actually, he's talking about global citizenship. Then Malviya, Madan Mohan Malviya, who is the founder of Banaras Hindu University. He was a
आउट एंड आउट पेट्रियट। उन्होंने इंडियनाइजेशन को प्राइम ऑब्जेक्टिव बनाया। इन्होंने कम्युनल हार्मनी को एम्फसाइज किया, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें पहले हमारे देश को पहचानना है। सो उनके फिलॉसफी से हमने एक सब्जेक्ट उठाया जिसको हमने नाम दिया अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि एनईपी के अंतर्गत आता है, और हर इंस्टीट्यूशन को इसको पढ़ाना ही है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग जो कि यूनेस्को द्वारा बताई गई है। तो 4 ऐसे स्तंभ है होलिस्टिक एजुकेशन के, यूनेस्को का कहना है। पहला स्तंभ है लर्निंग टू लर्न। लर्निंग टू लर्न का मतलब है कि लर्निंग टू आस्क क्वेश्चन, बेसिक इंक्विजिटिवनेस, इंट्यूटिवनेस। हम किसी भी चीज को क्यों एक्सेप्ट कर लें, क्यों ना हम सवाल करें, यही तो है साइंटिफिक रीजनिंग। So learning to learn means learning to ask questions, not asking questions only for the sake of asking question. हमें पूछना है इसलिए हमने कुछ भी पूछना है, ऐसा नहीं है। जब भी कुछ बताया जाता है, स्टूडेंट के दिमाग में ये होना चाहिए, पूछे कि ऐसा क्यों या ऐसा कैसे। दैट इज हाउ दे विल लर्न हाउ टू लर्न। सेकेंड इज लर्निंग टू डू, जो कि वोकेशनल एजुकेशन है। जब आप काम करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, then you are learning how to do, and that is important because जब आप काम करते हैं, you work as a team, you develop a team spirit, you can take up initiative, you can be a team leader, you can effectively manage time, finish the job within a stipulated time. So this is learning to do, basically vocational education. Third is learning to live. आपको दिख रहा है तीसरा वाला learning to live. Learning to live means learning to live without being judgmental, without being critical, without being argumentative. Live a life that is free from uh, free from narrow-mindedness, free from stereotype, free from being judgmental. So learning to live means learning to live in peace and harmony with all, learning to be inclusive in our thoughts. And the fourth pillar is learning to be. Learning to be का मतलब हुआ कि आप as a global as a global citizen आप कैसे रहते हो, how you are learning to be with others in the global community, in the society at large. तो वो है learning to be. Now the proposal of NEP 2020 says that by 2030 there will be one large multidisciplinary higher education institution in every district. तो इसका मतलब है कि हमारे देश में जो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टीडिसिप्लिनरी HEI होगा। ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो अब स्पेशलाइज्ड है, जैसे कि बीएड इंस्टीट्यूशन, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह, they will become multidisciplinary in nature. So B.Ed colleges will be phased out over a period of time, and instead of that, we will have multidisciplinary institution. We will also have multidisciplinary research intensive universities, क्योंकि जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च भी होगा, और टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज होंगे, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस होंगे। ये सब कुछ structural changes होंगे in the existing area of higher education, but then not much, only the approach changes. So friends, I have finished with holistic education.
I would like to find out whether you need, whether you have anything to ask, whether you have anything to share, uh, and then I will continue with my presentation. तो 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फ्रेंड्स, और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अब तक जो मैंने होलिस्टिक के बारे में कहा उस पर आप लोगों की कोई राय हो या कुछ भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, then it will be very nice before I move on to multidisciplinary. एक मिनट हाँ क्लास में ऑलरेडी 50 है, so I expect to hear some voices. हम लेक्चर शुरू आहे ते ब्रेक आलेला आहे. Yes, please. पार्टिसिपेंट प्लीज बी इंटरैक्टिव. इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो चीजें सॉल्व नहीं होगी. जी, Madam, multidisciplinary. I had a question. Yes, surely, sir. Madam, so we see a lot of efforts being taken up by the government recently in terms of rebuilding or restoring the past glory. And you see the new Nalanda University being established at the same place, and it is also called as the new Center for Holistic Learning. So, do you think that such initiatives help in aligning with the new education policy and the holistic experience that the policy is also trying to create? Yeah, definitely. The government is trying to revive the ancient. I already started with that, no, sir. That Nalanda is an example, a glorious example of our past, which also had holistic education. So when we are trying to restore the same thought, same idea, that is in line with this policy. But I don't think so. That is a question you want to ask me something, or you want to share something else? No, so this was basically related to the point that you had mentioned about Nalanda and Takshila. And I just wanted to Which seek points? your views. Okay. No, the government is trying, sir. Definitely it's trying. Thank you so much. And Mahesh Chandra Mishra, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Actually, my question is, this is the era of expertization. Sure. Means, there is one famous proverb, knowledge of all and master of none. So, Jack of actually, all trades. yeah, ma'am. So, Sir, the Jack whole, of all trades, master of none. Yes. yeah, yeah. So, holistic education isn't in contradiction to this fact, actually. No, sir. Absolutely not. I would like to contradict your thoughts, sir. Because हम लोग जब बोलते हैं that jack of all trades, master of none, this is a common misconception about NEP. हम लोग ये सोचते हैं कि when we are teaching so many things, when we are emphasizing on so many things, that means we are losing our track, we are being more superficial, we are not going deep. But if you see the course structure, sir, it is a 4-year course. ठीक है, आपका graduation will be a 4-year course, not a 3-year course. In 4 years में आपका 8 semesters में आपका जो मेन कोर्स सब्जेक्ट है उसका पढ़ाई आपका बहुत सारे पेपर्स आपको पढ़ने होंगे. इनफैक्ट लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में आपको 8 पेपर और पढ़ने पड़ेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप you are specializing in the course subject. You're becoming a master in that. You're getting a master's degree. Sometimes you're getting a master's degree, bachelor's degree with honors or bachelor's degree with research. And then you go on to get your master's degree, which is a 1 year or 2 year, depending on how many years you complete in graduation level. So, sir, what I want to say is that as far as the main subject is concerned, core subject is concerned, that is there. Supposing physics is the core subject, a student is taking up physics as the core subject. So the core subject को हम लोग major बोलते हैं यहाँ पर. The major subject stays throughout. By the time the student completes graduation, the student will have taken up enough papers of the core subject to make him a
रिस्पॉन्सिबल ग्रेजुएट। बाकी सब्जेक्ट्स जो कि सिखाया जा रहा है वो एक एक सेमेस्टर में हम लोग सिखा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक सेमेस्टर की पढ़ाई होगी, एनवायरमेंटल एजुकेशन एक सेमेस्टर की पढ़ाई होगी, ओके। सो जेंडर इक्विटी एक सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। ये सारी चीजें हम लोग क्यों सिखाएंगे? योगा, हेल्थ एंड वेलनेस एक सेमेस्टर। व्हाई वी आर टीचिंग ऑल दिस in one semester? Because a student should have the taste of everything. What happened previously, science students never bothered about learning English or Hindi because they were science student. So communication for a science student was taken, okay, usko to alag se kuch nahi padhna hai, kuch nahi seekhna hai. It was like this. But now it's not like that. Now communicative English, communicative Hindi, communicative Marathi, so that will also be a subject. लेकिन वो एक मेजर सब्जेक्ट कभी नहीं होगा, वो एक एलाइड सब्जेक्ट होगा. So you will not become jack of all trades. No one will become jack of all trades. आपको मास्टर बनना ही एक में, लेकिन आप सिर्फ मास्टर एक ही चीज में नहीं बन रहे हो, आपको दूसरी चीजों में भी आपको कुछ नॉलेज एंड स्किल दिया जा रहा है. डिजिटल लिटरेसी सबको, मैथमेटिकल थिंकिंग सबको. सो ये सारी चीजें पहले हम लोग नहीं करते थे. वी नेवर बॉदर्ड अबाउट दिस, नाउ वी आर बॉदरिंग अबाउट दिस. So I am a student of Marathi honors. Why will I know how to make an Excel sheet, or why will I know how to make a PowerPoint presentation? I'm not a computer science student, so I don't know that excuse will not work anymore, sir. Now everyone will know all these things. क्योंकि हमको at par अगर होना है with other countries of the world, we need to know all this. So thank you so much, sir. Dr. Disha and Prashant, ये लेकर. Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Yes. ma'am. Good afternoon, Dr. Disha. Ma'am, I have a very simple query. Okay. Since we all know that in Indian history, we have a very strong and robust education system way back from ancient time. Okay, and most of the our literature available, they have always mentioned the importance of having good cognitive skills, social and emotional and ethical dimensions of personality. Almost all ancient scripts have mentioned it very clearly. Then why only very respectful Swami Vivekananda's philosophy is it is globally accepted, but why NEP 2020 have taken only that base, not the previous one? NEP 2020 had to pick and choose a few things, no? So it's not, I know Indian, you can go on arguing that there are so many, so and so has said this, so and so has said this, yes. And the NEP is not refuting anything, but we take certain things from certain people. If you just go along the NEP 60-page document that is available in the net, you will see that this is how they have proceeded. कुछ ना कुछ तो पकड़ के आगे बढ़ना है ना मैडम. तो सॉरी, इट वाज प्रशांत सर और दिशा मैडम, यस. सो कुछ ना कुछ पकड़ के आगे बढ़ना है. सो दे हैव टेकन दैट. It is not being that they are being biased towards Swamiji or someone else. It's not that. आप अगर वो डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें वो है, and that is what I have taken up. Okay, so thank you so much, ma'am, and I really appreciate your concern. Prashant sir. Yes, ma'am. Good evening. Good evening, sir. Ma'am, I want to ask one question that what is the thought of Swami Rama Vivekananda in the holistic education, ma'am? And Swami because Vivekanand. yes, Swami ma'am. Vivekanand. हाँ, Because बोलिए. I heard that he is only the spiritual mentor. See, you are all aware that his birthday is celebrated as the National Youth Day, no? Yes, You are ma'am. aware of this, ना? तो Yes, स्वामी ma'am. जी सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु नहीं थे, वो यूथ के लिए ही सोचे थे. उनका जो विजन था ऑफ इंडिया, that is empowering the youth. If you But just read Swamiji's work, sir, yes, ma'am. But that was what? his
idea that you have What? to empower. Yes, yes. Okay, ma'am. ओके सर, सो Okay. एम्पावरिंग द यूथ, एम्पावर जब हम करना चाहते हैं तो हमको पहले उनको विद्या देना है। स विद्या या विद्या, स विद्या या विमुक्ति है, मतलब आप विद्या दीजिए और उनके मन से जो अंधेरा है उसको हटाइए। यूथ को पहले आप शिक्षित कीजिए। शिक्षित करने का मतलब ये नहीं कि उनको कॉलेज में लाओ और लेक्चर दो और घर भेज दो। उनको शिक्षित करना मतलब सही मायने में उनको इतना एम्पावर करो कि वो क्रिटिकल थिंकिंग भी जाने, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जाने, कम्युनिटी सर्विस भी कर पाए। ये था उनका उद्देश्य। ओके सर, Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। सो शैल आई प्रोसीड विथ मल्टीडिसिप्लिनरी? ये और सिंपल हो जाता है मल्टीडिसिप्लिनरी को हम लेके। भूषण अम्बड़े हैज रेज्ड हिज हैंड। क्या भूषण सर क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलिए सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मेरी उम्र अभी 55 साल है ओके सर। और मैं जेडपी स्कूल से एजुकेशन लिया हूँ मैम। ओके सर। और 1984 में मैं 10th हो गया। तब भारत बहुत गरीब था, हमारा देश। जी। भारत गरीब था तो एजुकेशन अच्छा था। हम्म और अभी मैं डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी हूँ हम्म और फैकल्टी हूँ। हम्म और आज हमारी देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है लगभग। तो एजुकेशन क्यों महंगा है? वो तो सस्ता फ्री होना चाहिए था। एजुकेशन क्यों महंगा है? आज का ये फोरम उस डिस्कशन के लिए नहीं है सर, किसी और दिन इसको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करेंगे। अब ये जो तो आपके एजुकेशन दिमाग में मिलेगा ही नहीं लोगों को मैम। नहीं नहीं, एजुकेशन अगर नहीं मिलेगा लोगों को, 80 करोड़ लोग आर लिविंग ऑन 5 kg grains. So how they will educate? सर हाउ दे विल एजुकेट, it is not your concern or my concern, that is the concern of the government who is talking about NEP. Okay, no, I am here only for sensitizing sir. मेरा ये काम है कि होलिस्टिक एजुकेशन को हम लोग अपने एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह से देख रहे हैं। ओके, कैसे होगा वो तो बात की बात है, लेकिन विजन को तो पहले समझ लेते हैं। विजन को पहले समझते हैं, फिर उसका एक्चुअलाइजेशन देखेंगे। उसमें तो बहुत सारी इफ्स एंड बट्स एंड सब बहुत कुछ होगा सर। वी विल गो इनटू दैट लेटर ऑन, बट फिलहाल आज हमारा ये डिस्कशन सिर्फ होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी का है सर। सो लेट मी गो अहेड विथ मल्टीडिसिप्लिनरी। थैंक यू सो मच भूषण सर, आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स फॉर इंडिया। थैंक यू सो मच। सो आई विल कंटिन्यू विथ माय प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का दूसरा भाग जो है वो है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन में हम ये देखते हैं कि या ये था मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या था और हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी हैड एंड व्हाट वी एम टू हैव। वी हैड मल्टीडिसिप्लिनरी करिकुलर, हमारे पास साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, इंजीनियरिंग सब था। अभी हम देख रहे हैं मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी एक ही इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडीज नहीं होंगे, जैसे कि आर्ट्स वाले सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ते थे, कॉमर्स वाले कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ते थे, ऐसा नहीं होगा। नाउ दे विल बी चॉइस, द स्टूडेंट कैन चूज। तो आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को अगर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पसंद है, मान लीजिए अकाउंटेंसी पसंद है एक इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट को, तो वो अकाउंटेंसी पढ़ सकती है एज अ माइनर सब्जेक्ट। या फिर अगर बॉटनी वाले स्टूडेंट को साइकोलॉजी का साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो वो साइकोलॉजी को एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकती है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आप स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम रखिए और उन्हें सोचने पर मजबूर कीजिए। दे विल कम आउट विथ सॉल्यूशंस, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। हम क्या करते हैं, वी आर एज टीचर्स वी आर सो यूज्ड टू गेटिंग आवर ओन लेक्चर्स बैक कि हम ये चाहते हैं हम जाके क्लास में ये पढ़ा देंगे, हमारे स्टूडेंट उसको समझ जाएंगे, उसको रट लेंगे, एंड दैट सेम थिंग विल कम बैक टू मी। माय क्वेश्चंस
will also be set on the basis of the lectures that I'm giving. But unfortunately, that will not help the students to develop mentally. जब problems आ जाते हैं तब वो solve नहीं कर सकते, because they have only learned something in theory. They have not learned to apply the theory to actual situation. इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी एम्फसाइज किया जा रहा है. एक और चीज, कम्युनिटी एंगेजमेंट. हमारे यूथ ग्रेजुएट होकर निकल तो जाते हैं, बट आर दे रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द कम्युनिटी? निकल के वो विदेश चले जाते हैं, वहां काम करते हैं, वहां के सिटीजन बन जाते हैं. देश में तो वो सिर्फ निवेश करते हैं, पैसा भेजते हैं, बिकॉज दे वांट टू बाय प्रॉपर्टी इन दिस कंट्री. But are they really concerned about the community that lives here? No. Who talks about aging population? Who shows concern about aging population? Which is a very grave situation in India. इंडिया में यूथ का भी संख्या जैसा बढ़ रहा है, वैसे एजिंग पॉपुलेशन का भी बढ़ रहा है. कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत जरूरी है. अगर यूथ ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सिमिलरली, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. क्यों हमारे यूथ सुइसाइड करते हैं? क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? व्हाई डू दे सीक मेंटल हेल्थ? आप हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट को, नॉट स्टूडेंट, यूथ को देखेंगे जो करोड़ों में कमाते हैं, वो खुश नहीं है अपने जिंदगी से. They suffer from sleeplessness, depression. They want to go and they want to they seek mental health. Why do they do that? That means somewhere or the other, the value system has gone wrong. Students have never been taught to look outwards. They have never been taught to look inwards also. अपने अंदर झांको, अपने चारों तरफ झांको, ये कोई सिखाया नहीं था. अभी एनईपी में ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी. अपनी चारों तरफ झांको और देखो. वो एनवायरमेंटल एजुकेशन होगा कि एनवायरमेंट क्या कहता है. ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग प्रॉब्लम नाउ. सी हाउ द वेदर इज चेंजिंग. गर्मी जब होनी है तो गर्मी नहीं होती, बारिश होने लगती है, और जब ठंड पड़ती है तो इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है किसी किसी जगह. सो व्हाई the students, the youth should understand this, and to make them understand, it is our duty to first sensitize them. तो वही हम लोग को इस एनईपी के दौरान करना है as part of multidisciplinary education. हम क्या करेंगे? we develop all capacities of human being. यानी कि ह्यूमन बीइंग का एक इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल जो भी है एस्पेक्ट है, उसको एक इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप करना है, और एक इमेजिनेटिव और फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर रखना है. अगर हम सोच लेंगे कि हम एकदम रिजिडली जो पहले होता था उसी को फॉलो करेंगे, मेरे पास मेरे 20 साल पुराना नोट्स है, हम उसी को रट के जाएंगे और क्लास में उसी चीज को बताएंगे, then I am not the right person to be in NEP. And finally, multiple entry exit होगा, recognition of prior learning होगा, lifelong learning होगा. ये सारी चीजें अभी इसके बारे में बातें हो रही है. कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एकदम बहुत खाली जाते हैं, जैसे कि इंडोलॉजी डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट. तो उनको भी स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज अभी इनका काम भी बढ़ रहा है. तो आगे बढ़ते हैं कि होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन में होगा क्या. वी विल हैव क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन. देन वी विल हैव प्रोजेक्ट्स. What type of projects? Projects that are concerning community and the surroundings. Environmental education होगा, value based education होगा, global citizenship, internship होगा. This is very important. पहले हमारा कभी internship नहीं होता था, only vocational subjects में internship होता था. अभी हर सब्जेक्ट का एक internship part भी होगा. और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम सब्जेक्ट्स. इसके साथ हम ऐड करेंगे ए यानी आर्ट्स और ई यानी एंटरप्रेन्योरशिप. एनईपी ये कहता है कि 3 या 4 डिग्री ईयर का ड्यूरेशन होगा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगा,
और एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन होगा, ऐसा दिखेगा, सॉरी, इसके बाद एबीसी भी होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वो क्रेडिट्स एक्यूमुलेट करेंगे और उस क्रेडिट्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स एक इंस्टीट्यूशन को छोड़ के कहीं और जा सकते हैं, या एक ही इंस्टीट्यूशन को छोड़ के जाके वापस उसी इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं, उनका क्रेडिट बैंक सही रहे तो। इट इज जस्ट लाइक वी पुट मनी इन अ सेविंग्स अकाउंट एंड इट इज सेफ, लाइक दैट ओनली क्रेडिट बैंक होता है। एनईपी और भी कहता है कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगे, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल होगा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगा। यानी स्टूडेंट का लाइफ सिर्फ कुछ सालों के लिए सीमित नहीं हो जाता है, द स्टूडेंट्स विल गेट द चांस टू हैव लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी उनका जो लर्निंग का पीरियड होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इंस्टीट्यूशंस को और भी एम्पावर कर सकते हैं। हर इंस्टीट्यूशन में हम फंडिंग्स के साथ वी कैन स्टार्ट अप इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स। अगर इंस्टीट्यूशन के पास वो क्षमता नहीं है, दैट दे डोंट हैव द रिसोर्सेज टू स्टार्ट अ रिसर्च सेंटर, दे कैन हैव हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करके और या इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज क्रिएट करके भी वो इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां रिसर्च होगा, एक्टिव रिसर्च होगा, जो कि कम्युनिटी या सोसाइटी को के लिए बेनिफिशियल होगा। कि हम ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगे वो हाई क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देंगे, जो कि बाहर के लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम होगा, क्रिएटिविटी होगा एजुकेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। हम अकेले तो काम कर सकते हैं, ओलंपिक में जाके हम इकलौता मतलब सिंगल गोल्ड तो जीत सकते हैं, लेकिन जहाँ पर टीम वर्क की बारी आती है वी डोंट विन मेडल्स। Why don't we win medals? Because our teamwork is weak. We have to work on our teamwork. In fact, we have to develop all capacities of human beings. तो ये फ्लो चार्ट ऐसे दिखेगा कि पहले हमारा एक इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, हम बढ़ेंगे ग्रेजुएशन, मास्टर या डॉक्टरल डिग्री की तरफ, फिर रिगराइज स्पेशलाइजेशन होगा इन अ सब्जेक्ट, फिर क्रॉस डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग होगा, और फाइनली हमारा जो एम है वो है इंडियननेस एंड ग्लोबल कंसर्न को ये करना, एनकरेज करना। The last part, friends, is human values, ethics, personality development, and environmental education. Why do we have ethical deterioration in the education system? आज का एजुकेशन सिस्टम, सर कुछ देर पहले एक सर बोल रहे थे कि हमारे पास एजुकेशन नाउ इज वेरी एक्सपेंसिव। सर नॉट ओनली एक्सपेंसिव, वी डोंट हैव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुरु शिष्य का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। एजुकेशन अभी कमर्शियलाइज हो गया है, हायर इंपॉर्टेंस हमें मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट को हम देते हैं, देयर इज मोर कंपटीशन एंड दैट इज आल्सो वेरी अनहेल्दी। Then there is pressure of curriculum completion and evaluation. There is indifference towards environmental issues and minimum exposure to practical learning. And of course, we have commercial tutoring, mushrooming of tutors. So many centers are there, no? Education centers are there, tuition centers are there. तो ये इन सब चीजों से एजुकेशन का एक एथिकल डिटेरियोरेशन हुआ है और उसी को हमें रिवाइव करना है। हमारी मॉडर्न सोसाइटी के कई चैलेंजेस हो गए हैं, डिप्रेशन, सुइसाइड, क्लाइमेट चेंज, डिटेरियोरेशन इन मॉरल कैरेक्टर, वैल्यू एजुकेशन नहीं होना, ये सारी चीज़ें हैं। अभी इन सब चीज़ों को भी हमें एड्रेस करना है, क्योंकि एक पॉलिसी जब आता है ना, उसके साथ पूरा समाज जो है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में कुछ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, क्लेनलीनेस, पंक्चुअलिटी, ओके, ग्रैटिट्यूड,
दीज आर यूनिवर्सल वैल्यूज। हम नहीं कह सकते हैं कि इंग्लैंड के ये वैल्यूज है, इंडिया के ये वैल्यूज नहीं है, नहीं। लेकिन हमारे इंडिया के भी अपने कुछ उसूल है, कुछ वैल्यूज है, एंड दैट कम्स अंडर इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन। और तीसरा है कि एजुकेशन प्रैक्टिस ऑफ वर्ल्ड क्लास वैल्यू गाइडेड स्किल। जैसे कि हम जब इंडिया से बाहर जाते हैं, मान लीजिए सिंगापुर गए, तो वहाँ एक टॉफी भी अगर खाएंगे तो उसका रैपर अपने बैग में फेंकेंगे, अपने बैग में डालेंगे, ना कि उसको कहीं रोड पे फेंकेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन एंड प्रैक्टिस जो है ऑफ वैल्यू गाइडेड स्किल है, दैट इज वेरी लेस, दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड। एक और कॉन्सेप्ट है इंडिया का, वसुदैव कुटुंबकम, जो कि इशारा करता है कि इंक्लूसिविटी होना चाहिए। तो आप पूरे विश्व के साथ एक है, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। So when we talk of global citizenship, we actually mean that. Let's talk of tolerance, peace, and not talk of discrimination, war, and other things. So what is the way forward? The way forward is first to connect to each other. Then we have to include all and strike the right balance between the right pedagogy and the philosophical orientation. हमारा पढ़ाने का मेथोडोलॉजी सही होना चाहिए, और एंड दैट शुड बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन। तो हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स में हम लोग को सिखाना है लर्निंग हाउ टू लर्न। यूनिसेफ का जो 4 पिलर था, 4 स्तंभ था, उसका एक स्तंभ है लर्निंग टू लर्न। उसी से हमको वो लेना है, लर्निंग टू आस्क क्वेश्चंस, learning to be inquisitive, basic scientific knowledge, and not stress on cognitive development only, but character development also. Then the 21st century skills should be there in all individuals. हमारे जो यूथ है, युवा शक्ति है, वो 21वीं सदी में है। तो 21वीं सदी के लिए जो जो चीजें जरूरी है, उन सब चीजों का ज्ञान उनको देना चाहिए। तो एनईपी जहां पर इम्प्लीमेंटेड हुआ है माय फ्रेंड्स, वहां पर मैथमेटिकल थिंकिंग, डिजिटल लर्निंग, ये सारी चीजें भी सिखाई जा रही है। कई कई जगह पर तो और भी ज्यादा, जैसे रोबोटिक्स सिखाया जा रहा है, मशीन लर्निंग सिखाया जा रहा है, क्योंकि इसके बिना अभी आगे बढ़ना संभव नहीं है। जो एग्जिस्टिंग पेडागॉजी एंड करिकुलम है, उसको हमको रीओरिएंट करना है, रिवैम्प करना है। और फिर हम और क्या कर सकते हैं, हम स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल सेट्स एंड वैल्यूज को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तो अगर आप महाराष्ट्र के हैं और आपका स्किल किसी एक क्षेत्र में है, तो अपने स्टूडेंट को उसी क्षेत्र का स्किल लीजिए, ना कि वो जो कश्मीर वाले दे रहे हैं या केरल वाले दे रहे हैं। क्योंकि कश्मीर में जो स्किल दिया जा सकता है, उसके रिसोर्सेस यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं है। तो वो डोमेन स्पेसिफिक होना चाहिए। आगे हम लोगों को की कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए, की आइडियाज को। स्टूडेंट्स को लेक्चर देके संपूर्ण चीज न बता के उनको की कॉन्सेप्ट दीजिए, और उनको समझने, अपने आप सेल्फ लर्निंग में एनकरेज कीजिए। इंटरैक्टिव मैनर में क्लास में डिस्कशन किया जा सकता है, क्रिएटिविटी सामने लाइए, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स दिखना चाहिए। फाइनली एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी स्टूडेंट्स को ले जाके कॉलेज से बाहर, यूनिवर्सिटी से बाहर आप ले जाके उनको परिचित करवाइए कि दिस इज द रियल सिनेरियो, थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ दिस एरिया, देन ओनली वी विल बी सक्सेसफुल। So holistic development has, of course, a wide choice of subjects and courses. There's no hard separation between curricular, extracurricular, co-curricular, ऐसा कुछ नहीं है। Even subjects like physical education, arts and craft, vocational skill, the mathematics, humanities, all this will be incorporated. तो ये सारा कुछ जब हो जाता है, तो हम आखिर में एक ऐसे जगह पे खड़े हो जाते हैं जहां हमारा कलेक्टिव एफर्ट दिखता है। तो हमारा ये कलेक्टिव एफर्ट
इसका पावर ही है हमारा सक्सेस का प्रिंसिपल। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, हम दोनों सेंसिटाइज होके भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि ना एंटायर इकोसिस्टम इसके पक्ष में हो। लेट द होल इकोसिस्टम ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट चेंज। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, दैट इज द लॉ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। Because finally, friends, no one truly wins unless we all win. Today's lecture or today's session will be totally useless if you don't generate your own thinking in this. It's very easy to point fingers and say कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे होगा, ये क्यों वो क्यों। बल्कि फ्रेंड्स, आप ये सोचिए कि आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। बिकॉज देर इज नो syllabus or no blueprint whatsoever on how to give holistic education to the students. कुछ भी नहीं है। लेकिन as teachers and as mentors we all are responsible towards the well-being of our students. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें होलिस्टिक, द थॉट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन को हम लोग को आगे ले जाना है, क्लासरूम के अंदर ले जाना है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, उनसे उनको परिचित करवाना है। So these are the things, friends, and with this I stop my presentation. In case anyone has any observation, anything that you'd like to share, or you have certain areas that you are not agreeing with, we can always have a discussion. So all that I wanted to say, I've already said it through my PPT. So friends, this is all about this. Prashant Yelekar sir. Yes, ma'am. In one of the slide, there was written CBCS. What is that, ma'am? CBCS. Oh, CBCS is choice based credit system. पहले था, मतलब एनुअल सिस्टम के बाद हम लोग लाए थे CBCS सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। फिर उसके बाद है अभी ये NEP आया जो कि क्रेडिट सिस्टम है। ओके मैम, दैट्स इट, थैंक यू। ओके, एकेडमिक ABC है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। महेश चंद्र मिश्रा सर। या मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली हमारी कुछ जो ये सेशन हुआ इसमें कुछ की पॉइंट्स जैसे आया कि हमको कुछ पर्टिकुलरली आपने कुछ डिपार्टमेंट्स के भी नाम लिए थे, सेगमेंट्स के, जिसको स्ट्रेंथन करना है, एक चीज़ आई। फिर इसमें होलिस्टिक एजुकेशन में ये है कि मेजर तो जो जिसमें जो कोर सब्जेक्ट रहेगा स्टूडेंट का वो उस पर फोकस ही करेगा, उसके साथ में माइनर्स को भी वो कुछ चॉइस बेस्ड सिस्टम के तहत वो सिलेक्ट करेगा। ये चीज हुई। अभी क्या हो रहा है ना मैडम कि यस, उसके साथ जी इसमें स्टूडेंट्स का जब स्टूडेंट कोर सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं ना एक बार, तो जो माइनर्स की तरफ उनका ये नहीं रहता है उनका, क्योंकि देखिएगा कि ये जैसे वो उसके तरफ वो उतना फोकस नहीं कर पाते माइनर सब्जेक्ट को, और वो जो सब्जेक्ट्स है ना उतना डिग्निफाइड तरीके से उसको टैकल भी नहीं किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज भी नहीं किया जाता है। ये एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे मेरे द्वारा तो हुआ है ये एक्सपीरियंस। सर उसके लिए तो वो तो होगा सर, हर चीज तो हमारा परफेक्ट हो ही नहीं सकता है ना सर, वो तो होगा, क्योंकि यू कांट एम्फसाइज ऑन एवरीथिंग एट द सेम टाइम। आप चाहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बने, मास्टर बने, तो मास्टर किसी एक ही चीज में ना बनेंगे। माइनर सब्जेक्ट को तो वैसे ही पढ़ने, वो शौक से पढ़ते हैं। पहले जो शौक से नहीं पढ़ते थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर उसका बॉटनी ऑनर्स है तो उसको जूलॉजी और केमिस्ट्री लेना ही है, चाहे उसको पसंद हो नहीं हो। अगर उस बंदे को बॉटनी के साथ ज्योग्राफी पढ़ना पसंद था, पहले उसको ज्योग्राफी सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा, लेकिन वो नहीं कर सकता था। अभी उसको वो चॉइस है कि आप थोड़ा ज्योग्राफी भी पढ़ लो। और सर ये सिस्टम फॉलो होता है पूरे, आप यू गो टू US
All the universities of US have this system. They have a very open system of studying, and you can't say that they are lacking behind. So why not? So if they have progressed, we can also. और हमारा तो एजुकेशन सिस्टम और भी पुराना है, हमारा तो कब से है. वी आर द ओल्डेस्ट कंट्री. सो आज अमेरिका जहां भी है, जो भी है, तो हमारे बच्चे वहां भाग रहे हैं. हमारे देश को के अपने जो संस्कृति को, अपना धरोहर को छोड़ के भाग रहे हैं सर. यही तो बुरी बात है. अगर हम उसी चीज को रेप्लिकेट कर सके जो पहले भी होता था, इट विल बी अ बेटर थिंग. सो माइनर में इंटरेस्ट है या नहीं है, या इट इज, आई थिंक सर दैट्स अ वेरी ट्रिवियल मैटर. वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा इन द लॉन्ग रन इफ यू सी द बिगर पिक्चर. Thank you so much, sir, for your question. Thank you, ma'am. Anyone else? Yes, Prashant Kelekar, sir. Yes, ma'am. I want to ask one question that can you suggest what are the good things we can take from Western culture? You tell me, sir. You tell me. Why will I say, sir, what you can take from Western culture? You tell me. कि हम क्या ले सकते हैं. अगर आई वॉज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल वैल्यूज, जो वैल्यूज है यूनिवर्सली, जैसे कि एक वैल्यू मैं बता रही हूँ, पंक्चुअलिटी. दैट इज वन वी कैन टेक फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर. वहां पर अगर ट्रेन को 9 बजे आना है तो 9:01 को वो ट्रेन वहां से चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं आपके लिए. हमारे यहाँ तो चेन पुलिंग करके 10 मिनट 15 मिनट रोक देंगे. So that is one thing that we can take from them. Cleanliness, that is another thing. अपने आसपास को कैसे साफ रखा जाए. Those are things, sir, we can do. We can take from them. Thank you so much, sir. Okay, ma'am. Thank you. और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम कल फिर से है ना क्लास? Yes, madam. Yes, tomorrow you will have another session on student diversity. So we will. So we'll continue in that also. Yeah, we'll continue in that So also. I extend my thanks to respected Dr. Devjani Roy, madam, for today's session. Madam, see you tomorrow at the same time. Yes. Thank you. Thank you so much, सबको ma'am. नमस्कार. Once again, Happy New Year. मैडम देठी सर देठी ज्वाइन सर को किए मेरे हैं. तरफ से बोल दीजिएगा देठी मैम. सर ने ज्वाइन किया है. नमस्कार नमस्कार मैडम, हैप्पी न्यू ईयर टू यू. नमस्कार सर. Thank you so much for being there in my session. It's always an honor for me to be there in HRDC Nagpur. It's Wish our you a very pleasure. happy New Year, sir. Yeah, Thank it's you. our pleasure to invite you. Thank you so much, sir. I'm humbled. Thank you so much. So may I leave, ma'am, with your Yes, permission? madam. Yes, ma'am. See you tomorrow, ma'am, at 4 o'clock. Yeah. Thank you. Thank you so much, ma'am, once again. So friends, you just take 2-3 minutes refreshment break and come back immediately. We will start our next session. Don't leave the meeting. Just take your refreshment break and come back. Good evening, sir. Yeah, good evening. Yeah. Sir, 2-3 मिनिटात सुरू करूया. चालेल चालेल, Yeah. ठीक आहे.